Hello students, in this lecture we will be discuss about usage of dimensions and the limitations of dimensions. Okay, so let us start now. Usage of dimensions. Usage of dimensions are of three types. First is conversion of units from one system to another system. हम डायमेंशन की हेल्प से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. एंड चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले. किसी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से. अगर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड का इक्वल आता है तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा. एंड ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन की हेल्प से हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट conversion of units from one system to another system. Let us consider Q is a physical quantity and its numerical value N1 and unit U1 in one system, and its numerical value is N2 and unit U2 in other system. Okay, like this, mass M equal to 1 kg, and this is written as in CGS system is 1000 gram, where M for mass is a physical quantity and 1 is numerical value in MKS system and kilogram is unit in MKS system. Okay, and 1000 is a numerical value in CGS system. This is N2 and this is unit of mass in CGS system U2. Suppose M1, L1, T1 are the fundamental units of mass, units of mass, length and time in one system. Okay, and M2, L2 and T2 are the fundamental units of these physical quantities in other system. Are the fundamental units of these quantities in other system. Okay, if A, B and C are the dimensions of these physical quantities in both system, if A, B and C are the dimensions of these physical quantities in both system, therefore N1 unit U1 is replaced to M1, L1, T1, where dimensions of these quantities A, V and C equal to numerical value N2 in other system and units of these physical quantities in other system M2, L2, T2, and dimensions are same in both system of these physical quantities, where
N2 equal to N1 M1 by M2 whole power A and L1 by L2 whole power B, T1 by T2 whole power C. Okay, this is the formula for converging units from one system to another system. Okay, इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं. Example number 1 converts the 1 Newton into dyne. It means 1 Newton converts into dyne. 1 Newton is the unit of force, where force is a physical quantity. Q equal to 1 Newton. Q is for quantity, means physical quantity, where physical quantity is a force. This is written as 1 kilogram meter second inverse square in terms of fundamental units. Okay, where N1 equal to 1, M1 equal to kg, L1 equal to meter and T1 equal to second. In other system of these units, M1 equal to kg and M2 is gram, G, and L2 centimeter, T2 second, where dimensions of this quantity A equal to 1 and V equal to 1 and C is equal to minus 2. We have to calculate numerical value of this physical quantity in other system, means N equal to question mark. We apply the formula N2 equal to N1, M1 by M2 whole power A, L1 by L2 raised to power V and T1 by T2 C. इस तरह से इनके वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. क्या होता है देखिए, N2 equal to numerical value of physical quantity force in one system is 1. We have to calculate its numerical value in other system. M1 is replaced to kg and M2 is replaced to g. Power 1. Meter by centimeter power 1. Second divided by second power minus 2. Second cancel out to second. 1 kg is equal to 1000 g, means gram, divided by gram. 100 centimeter is replaced by 1 meter upon centimeter power 1. यहाँ पे 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो 1 पे पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा. ग्राम कैंसिल आउट टू ग्राम, सेंटीमीटर कैंसिल आउट टू सेंटीमीटर. N2 equal to 10 to power 3, 10 to power 2. This is written as 10 to power 5. It means 1 Newton equal to 10 to power 5 dyne. 1 Newton equal to 10 to power 5 dynes. 1 Newton को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर 10 to power 5, और 1 डाइन को लिखेंगे किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 Newton and dyne. Okay, it means 1 Newton equal to 1 kilogram meter second inverse square and 1 dyne equal to 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ओके, इसको अच्छे से नोट करिए. उसके बाद हम चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं. ओके,
check the correctness of formulae. Second, correctness of formulae. डायमेंशनली हम दोनों किसी भी फॉर्मूले की दोनों साइड के डायमेंशन लिखेंगे, अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आती है तो फॉर्मूला बिकम्स करेक्ट. ओके, सो देखिए डायमेंशंस आर इक्वल ऑफ बोथ साइड. डायमेंशंस आर इक्वल of both sides of any formula. That is correct. That is correct. अगर किसी भी फॉर्मूले के दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है. लाइक दिस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई रूट एल वाई जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज यूज्ड इन सिंपल पेंडुलम एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों तरफ का हम डायमेंशन लिखेंगे और अगर ये डायमेंशन दोनों साइड के इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला इज करेक्ट. ओके, this is time period, its unit is second and dimension for second is t. ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है इसका हम डायमेंशन नहीं लिखते, इसको हम ड्रॉप करेंगे. रूट लेंथ के लिए डायमेंशन होता है l. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन और इसका डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स स्क्वायर. l कैंसिल आउट टू l, टी इनवर्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो टी रह जाएगा. मींस दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं. इट मींस फॉर्मूला करेक्ट. ये फॉर्मूला करेक्ट है एकदम. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. इसको अच्छे से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं. डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले. We can derive the formula with the help of dimension method. Okay, we can derive the formula with the help of dimension method. Okay, example, let us consider this is a simple pendulum. ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है जो एसएचएम करता है मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन. इस तरह से ऐसे. इट्स लेंथ इज एल. ओके, और ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टाइम टी लेता है. ओके, तो हम लिखेंगे सपोज, और अगर ये टाइम टी लेता है तो हमें इसके टाइम पीरियड के लिए ही फॉर्मूला ड्राइव करना है.
तो हम लिखेंगे सपोज टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum depends on टाइम पीरियड कैपिटल टी लिख दो, ये इस तरह से, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बोब, मास ऑफ बोब, ये बोब होता है ये वाला, m की पावर a, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l की पावर v, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and acceleration due to gravity g की पावर c। टाइम इन टर्म से डिपेंड करता है, मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड करता है। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर v एंड g की पावर c। दिस इज रिटन एज k, प्रोपोर्शनल टू का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, t फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड एंड डायमेंशन फॉर सेकेंड t। तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ओके, k कांस्टेंट है, इसको ड्रॉप करेंगे, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये है मास, इसके लिए डायमेंशन m, और ये है लेंथ, इसके लिए l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका होता है l t इनवर्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर c है, तो यहाँ पे c, यहाँ पे भी c हो जाएगा। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2c। a इक्वल टू 0, और पावर कंपेयर करेंगे हम, बेस सेम है, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 और माइनस का 2c इक्वल टू 1 मीन्स c इक्वल टू माइनस का 1/2। c का वैल्यू माइनस का 1/2 हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। हमें तीनों के वैल्यू मिल गए, a b एंड c, तीनों के वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। putting the value of A, B and C in equation 1, t equal to k, l की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2। देखिए m की पावर a है तो ये 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, t इक्वल टू k रूट l/g, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। बट बाय एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट कंप्लीट वाइब्रेशन में k का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। देखिए ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा, मीन्स ये समझ लो कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पाई एंगल रोटेट करेगा फिर वापस आएगा तो एक और पाई मीन्स 2 पाई हो जाएगा। y एक्सपेरिमेंट्स k इक्वल टू 2 पाई, therefore t equal to 2 pi root l/g. Okay, this is the time period of simple pendulum। इसे आप बच्चे से नोट करिए, फिर इसके हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं।
लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस क्या क्या है वो देखिए. दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट. हम इस मेथड से कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसके बारे में नहीं जान सकते. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय डायमेंशन. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज़्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो हम उसके लिए डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं. ओके. थर्ड, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड. इसकी हेल्प से हम कोई ऐसा फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते जिसकी किसी भी साइड में एक पार्ट से ज्यादा पार्ट हो, जैसे कि b इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसमें एक साइड में तो एक ही पार्ट है, दूसरी साइड में 2 पार्ट है प्लस करके जुड़े हुए हैं. ओके. h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी इधर 2 पार्ट है. तो ये हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते हैं. ओके. Fourth is, we cannot derive the formula containing trigonometric, exponential and log functions etc. हम डायमेंशन मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं कर सकते हैं, लॉग भी नहीं कर सकते हैं. ओके. अगला स्टेटमेंट है हमारा, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और अ वेक्टर. हम इससे ये भी पता नहीं कर सकते कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. ओके. आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक्स.